Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be discussing the topic that is the various categories of business services. और उस कैटेगरी में हम सबसे पहली सर्विस जो डिस्कस करने वाले हैं that is the banks. Now all of you are aware of what are banks. किसी भी तरीके का बिजनेस हो, each and every business, whether it is big or small, they depend upon the services of banks. That means banks are actually providing funds for the carrying the business operations in a smooth manner. इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंक को किस तरीके से डिफाइन करती है? डिफाइंस दैट बैंकिंग कंपनी एज वन which transacts the business of banking by accepting the deposits of money from the general public which are repayable on demand and lending to the public or investing in the public deposits. बैंक एक्चुअली क्या कर रही है? जनरल पब्लिक से पैसा ले रही है जो कि जब भी वो चाहे तो वापस ले सकते हैं और उसी पैसे को रोटेट करके उन बिज़नेस फर्म्स को दे रही है जिन्हें अपना बिज़नेस चलाना है, एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है एंड सो ऑन. दैट मीन्स बैंक्स आर एक्चुअली एनकरेजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ by mobilizing the savings of the people and making the funds available for business financing. Now we'll be discussing the various types of accounts which your individual can open in the bank. सबसे पहला अकाउंट आता है हमारा सेविंग अकाउंट. It is the most important account which is operated by the commercial banks. Why? The main reason is to promote the habit of savings among the people. It can be opened with minimum initial deposits that varies from bank to bank. कितना भी मिनिमम अमाउंट लेकर के इस अकाउंट को खोला जा सकता है और ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है. इस टाइप के अकाउंट में किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते ऑन नंबर एंड द number of times you are operating this account and the amount of deposits through which you can start off with this account. That means there are no restrictions on number and amount of deposits. Rate of interest इस account पे बहुत nominal रहता है and varies from bank to bank. इस account पे किसी भी तरीके की overdraft facility available नहीं रहती है और डिपॉजिटर को एक चेक बुक और पासबुक इशू किया जाता है. जो भी एंट्रीज़ हैं, कितनी बार डिपॉजिट हुआ है, कितनी बार विड्रॉल हुआ है, एवरीथिंग इज़ शोन इन द पासबुक एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ जनरली लोअर देन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. अगला अकाउंट आता है हमारा करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट. ये अकाउंट यूजुअली खोलने वाले कौन होते हैं? बिजनेसमैन. इस अकाउंट को जितनी बार भी ऑपरेट किया जाए किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते. That means it is opened by the business who have number of regular transactions with the bank. That means both deposits and withdrawals. So it is enabling the businessman to conduct the business transactions smoothly. In current account, the amount can be deposited and withdrawn anytime. बैंक्स को इस अकाउंट पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट बैंक इस अकाउंट पर सर्विस चार्जेस इम्पोज करती है. दैट इज़ बैंक्स आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट, रादर दे आर इम्पोजिंग द सर्विस चार्जेस ऑन द ऑपरेटर ऑफ दिस अकाउंट एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट. It is enabling the account holder to obtain the overdraft facility also. That means इनके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा ये बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं. बिजनेस एंटरप्रेन्योर इस अकाउंट को यूज़ करके he can make direct payment to the creditors and with the help of the check, and he can also collect the money on behalf of its customers and credit the same to this account. No restrictions on number of time the account being operated by the current account holder. अगला अकाउंट आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. Fixed deposit account is an account in which the amount is deposited with the bank for a fixed period of time.
और ये जो टेन्योर है फिक्स पीरियड का, इट कैन वैरी फ्रॉम 7 days और 15 days और 45 days to 1.5 years, and it can be as high as 10 years. So this type of account is carrying the highest rate of interest. It is also known as term deposit or time deposit account. जो भी मनी इस अकाउंट में डिपॉजिटेड है वो एक टाइम पीरियड के बाद पेबल रहता है. दैट मीन्स द मनी डिपॉजिटेड इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड. हाउएवर, इन केस ऑफ एमरजेंसी, प्री मेच्योर विड्रॉल इज ऑल्सो परमिसिबल, बट रिकमेंडेड नहीं है कि आप एफडी को टाइम से पहले तोड़ें, क्योंकि अगर ऐसा करने पर आप अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे. द डिपॉजिटर, जो भी पैसा फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट कर रहा है, ही इज़ गिवन एन एफडी रिसिप्ट विच ही हैज़ टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. डिपॉजिटर जो है, he can also take a loan or overdraft facility against the FD account. Next account is your RD account or the recurring deposit account. Recurring deposit account is a type of account which allows the account holder to save fixed amount on regular basis for a fixed period of time. मतलब कि जो भी अकाउंट खोल रहा है वो एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मंथली बैंक के साथ डिपॉजिट करता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए. Such accounts are actually encouraging regular saving habits among the individuals. A fixed amount of money is deposited on regular basis, which is usually monthly for a fixed period of time. जैसे कि मिस्टर एक्स ने एवरी मंथ 500 रुपीज़ बैंक के साथ अपने रेकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करने का डिसीजन लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months. Account holder, इस केस में भी he has no right to withdraw money before the expiry of fixed period of time, and in case if he is withdrawing the money from this account, the account holder is going to lose the interest on the deposits made. Interest is usually paid at the time of maturity, which could be either 1 year or 2 year as decided by the account holder at the time of opening the account. और rate of interest डिपेंड करता है कितना अमाउंट आपने बैंक के साथ डिपॉजिट किया है और कितने पीरियड के लिए आपने बैंक के साथ उस अमाउंट को डिपॉजिट किया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहता है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पेबल है सेविंग अकाउंट पे. दैट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ पेड ऑन सेविंग अकाउंट. एंड अकाउंट होल्डर के पास एक और राइट रहता है दैट ही कैन टेक अ लोन अगेंस्ट द RD डिपॉजिट्स अकाउंट. Minimum period of RD is 6 months to 10 years. कहने का मतलब है कि ये एनकरेज कर रहा है एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का डिपॉजिट बैंक के साथ, और उस एवरी मंथ द पर्सन नीड्स टू डिपॉजिट दैट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, एंड ऑन दैट डिपॉजिट अ बैंक इज़ रेडी टू गिव अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ हायर देन द सेविंग अकाउंट. अगला आता है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. सी, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है दैट इट इज़ ऑफरिंग मल्टीपल ऑप्शंस टू द डिपॉजिटर. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर अकाउंट्स. इस अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के साथ लिंक होता है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट विद द करंट अकाउंट. तो जो अकाउंट होल्डर है वो दोनों ही अकाउंट्स के बेनिफिट्स को इंजॉय कर सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इफ़ द सेविंग अकाउंट इज़ बीइंग लिंक्ड विद द FD अकाउंट, देन एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम बैलेंस फ्रॉम द सेविंग अकाउंट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. और इन केस ऑफ insufficient funds, payment can be made by transferring from fixed deposits to saving account. That means जब इस ऑप्शन के लिए बैंक के साथ अप्लाई किया जाता है तो अकाउंट खोलने वाला बैंक को एक थ्रेशोल्ड लिमिट देता है. उस थ्रेशोल्ड लिमिट तक अमाउंट सेविंग अकाउंट में रहता है,
and the amount over and above that threshold limit gets automatically transferred to FD account, जिसके कारण अगर सारा का सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रहता तो अकाउंट होल्डर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अर्न करता, बट क्योंकि अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा FD अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है ऑटोमेटिकली, अकाउंट होल्डर is in a position to earn high rate of interest. और मान लीजिए किसी को अकाउंट होल्डर ने किसी के लिए कोई चेक काटा और सेविंग अकाउंट में अमाउंट कम है, तो इस केस में अमाउंट फ्रॉम FD अकाउंट विल ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर्ड टू द सेविंग अकाउंट. So chances of dishonoring of check are negligent with such option, that is multiple option deposit account being opened with the bank. तो क्विकली इसके फीचर्स देखते हैं, फिर एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करती हूँ. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया. ये अकाउंट होल्डर को किस तरीके से मदद कर रहा है? इट इज़ अनेबलिंग द अकाउंट होल्डर टू अर्न हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. Surplus money in saving account is automatically transferred to the FD account and thus high rate of interest is earned. And last, it is reducing the risk of dishonoring of check in case saving account has insufficient funds. एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ. मान लीजिए रमेश ने बैंक के साथ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट खोला है और बैंक को वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट देता है ₹30,000. उसके पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये हैं, जिस पर एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज सेविंग अकाउंट पे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 to 4% अर्न कर रहा है. वो फिर से डिपॉजिट करता है इस अकाउंट में 45,000. अब उसका टोटल बैलेंस सेविंग अकाउंट में कितना हो जाएगा? 70,000. अब क्योंकि बैलेंस थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी? 30,000. अब कितना अमाउंट हो गया? 70,000. अब क्योंकि बैलेंस सेविंग अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, दैट इज ₹40,000, विल बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. And Ramesh will now start earning high rate of interest, say around 6% or 6.5%. In this way, Ramesh has 30,000 in his daily requirement account, that is saving account, and he has 40,000 in the FD account, which is also available to him in case if he requires it. अब रमेश विड्रॉ करना चाहता है 50,000 रुपीज़. Now his account balance is just 30,000. इस केस में an additional amount of 20,000 will be auto reversed from his FD account and he can withdraw total ₹50,000. So I hope the concept of multiple option deposit account is clear to you with the given example. Thank you. That's all for today. We'll be discussing the various services offered by the bank in my next video. If you have any queries, please comment.